آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بونڈائی بیچ پر فائرنگ کے واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے۔ آسٹریلی پولیس نے بونڈائی بیچ میں فائرنگ کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے۔ فائرنگ سے 2 پولیس اہلکاروں سمیت 29 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جوابی کارروائی میں فائرنگ کرنے والا ایک شخص مارا گیا، فائرنگ کرنے والا دوسرا شخص زخمی اور حراست میں ہے۔ فائرنگ کرنے والے کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ فائرنگ کا واقعہ یہودیوں کے تہوار کی تقریب کے دوران پیش آیا۔ آسٹریلین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ساحل پر فائرنگ کا واقعہ تکلیف دہ ہے۔ آسٹریلیا میں مسلم کمیونٹی کی جانب سے سڈنی میں فائرنگ واقعے کی شدید مذمت۔ مسلم کمیونٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ معاشرے میں ایسے پرتشدد اور مجرمانہ اقدامات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ذمہ داروں کو قانون کا سامنا کرتے ہوئے مکمل طور پر جواب دہ ہونا چاہیے۔ امریکہ کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے۔ روہڈ آئی لینڈ میں واقع براؤن یونیورسٹی کو فائرنگ کے سبب بند کر دیا گیا ہے۔ فائرنگ انجینئرنگ بلڈنگ میں ہوئی۔ حملہ آور کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کا اس سال یہ 70واں واقعہ ہے۔ فائرنگ کے وقت کئی طلباء نے اپنی جان کلاس رومز کے ڈیسک کے نیچے چھپ کر بچائی۔ حملے کے وقت طلباء امتحانات میں مصروف تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں وزیر اعظم کی مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں معاملات فیض حمید، جنرل باجوہ اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہی چل رہے تھے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناءاللہ نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ایک بریفنگ کے دوران جنرل باجوہ اور فیض حمید سے بات ہوئی۔ جنرل باجوہ نے کہا رانا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں بہت سمارٹ تھے، فیض رانا صاحب کو دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ اس پر انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا ہی میں اس کا حساب کرے گا۔ سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کے خلاف نہ تو کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی کارروائی زیر عمل ہے۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی کا اپنی رپورٹ میں باخبر ذرائع سے متعلق دعویٰ جنگ اور دی نیوز میں شائع رپورٹ میں کہا گیا کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی سزا کے بعد بعض سیاسی اور میڈیا حلقوں میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کے خلاف قانونی کارروائی کے امکان پر قیاس آرائیاں شروع ہو گئی۔ ذرائع نے کہا کہ بعض حلقوں میں پھیلائی جانے والی یہ 6 مگوئیاں بے بنیاد ہیں۔ فوجی احتساب کا وہ عمل جس کے نتیجے میں جنرل فیض کو سزا ہوئی مکمل طور پر شواہد کی بنیاد پر تھا اور صرف ان کے انفرادی اقدامات تک محدود رہا، جبکہ اس کیس میں سابق آرمی چیف کو جوڑنے والا کوئی مواد موجود نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی طرف انگلی اٹھانے والے پہلے اپنے صوبے کی کرپشن دیکھیں۔ پنجاب میں ہزاروں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی نے کہا کہ این ایف سی میں خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں دیا جا رہا۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان کو متحد کرنا ہے، تمام اقوام کو متحد ہونا ہوگا۔ ہم یہ بھی چیلنج دیتے ہیں تمام لوگوں کو کہ وہ کرپشن کے ثبوت لائیں، چاہے کسی بھی کے خلاف ہو۔ انشاءاللہ تعالی حکومت خیبر پختونخوا ان کے خلاف کارروائی کرے گی انشاءاللہ۔ ذرا اپنے صوبے کا حال دیکھیں، جو تازہ سروے کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ پنجاب پولیس پورے پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ میں سب سے زیادہ پر کیپٹا انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ پنجاب سب سے نیچے ہے پورے پاکستان میں۔ یہ تو ان کا حال ہے اور مشورے ہم کو دے رہے ہیں۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں شامل ہے۔ اگلے 10 برس میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی خود مختاری مستحکم کر لیں گے۔ نیوز بریفنگ کے دوران بلال بن ثاقب نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار عالمی ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ کہا 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ $100 ٹریلین کا عالمی بانڈ مارکیٹ ڈیجیٹل ریلز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فریم ورک صرف ٹریڈنگ کے لیے نہیں بلکہ صنعتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ آج پاکستان نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ گلوبل ایکسچینج ایک ریگولیٹڈ، ٹرانسپیرنٹ اور گلوبلی کمپلائنٹ راستہ کھولا ہے۔ بائنانس اور ہوبی کو دیے گئے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اسی ایک نئی سوچ کا پہلا پریکٹیکل قدم ہے۔ اور میں کلیئر کرتا جاؤں، یہ این او سی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ کوئی بلینکٹ اپروول نہیں ہے، یہ ایک
रिस्क मिटिगेटेड, फेज्ड, सुपरवाइज्ड एंट्री फ्रेमवर्क का पहला स्टेप है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हमने पहले इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करना है और बाद में स्केल करना है, जो पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच है। आज पाकिस्तान दुनिया के टॉप 3 क्रिप्टो अडॉप्शन कंट्रीज में शुमार है। अंदाजे के मुताबिक 30 से 40 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं पाकिस्तान में। ये बगैर किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बगैर किसी क्लासरूम, बगैर किसी एजुकेशन के उन्होंने ये इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हमें पता चलता है हमारी यूथ वर्ल्ड क्लास है, बट क्या हमारे सिस्टम्स वर्ल्ड क्लास हैं? क्या हमारी रेगुलेशंस वर्ल्ड क्लास हैं? और हमारी मुल्क की लीडरशिप ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस गैप को कम करने की कोशिश की है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान हमजा शफकात का कहना है कि कारान में आज कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्द SHO सिटी कारान के कत्ल में मुलविस हैं। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG CTD बलूचिस्तान ने कहा कि तीनों दहशतगर्दों को अदालत में पेश किया जाएगा। SHO सिटी कारान इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जो हमारा कामयाब हुआ, खारान में हुआ, जिसमें 3 बंदे जो हैं वो अभी अंडर अरेस्ट हैं और मजीद के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। इस साल सिर्फ 2025 में जो टोटल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं, जिनको हम IBOs कहते हैं, वो 78,000 ऑपरेशंस हुए, 78,000 टोटल टेररिस्ट पकड़े गए और मारे गए, और ड्यूरिंग क्रॉस फायर जिनको मारा गया उनकी तादाद 707 है। इस साल की जो सबसे बड़ी हमारी नॉन काइनेटिक और सब काइनेटिक डोमेन में सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने, US स्टेट डिपार्टमेंट ने 11 अगस्त को BLA को और मजीद ब्रिगेड को FTO डिक्लेयर कर दिया, यानी कि फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसीलिए पिछले महीने चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक नया सेल बनाया है जिसको हम रेड नोटिस सेल कह रहे हैं, और अब ये जो तमाम टेररिस्ट दूसरे मुल्कों से ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे मैडम ने भी सवाल किया था कि ये इनका ताना बाना जो है वो हमारे हमसाया ममालिक से मिलता है, तो हम उनके पीछे भी जाएंगे, इंटरपोल से भी रब्ता करेंगे और उसकी पूरी वर्किंग CTD, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के जो बाकी सारे इदारे हैं उनके ऊपर काम करें, और अगले 2-3 महीने में इसमें बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें नज़र भी आएंगी। तीनों लोग इस वक्त हमारी कस्टडी में हैं, जो जॉइंट ऑपरेशन में हुआ, जिसमें CTD, हमारे दूसरे इंटेलिजेंस इदारे और FC ने शामिल थे, और इंशाल्लाह हम इनको कोर्ट में पेश करेंगे। हमारे SHO जो इसको बेदर्दी से शहीद किया गया, और बेसिकली उसको ये किडनैप करना चाहते थे। पर्पस वाज कि वो काफ़ी अरसे से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में भी इन्वॉल्व था, और बाकी था जो भी वहाँ पे इंटेलिजेंस गैदर हो रही थी वो CTD के साथ या बाकियों के साथ शेयर कर रहा था, और उसके साथ वो कार्रवाइयाँ भी कर रहा था जिसको ये न्यूट्रलाइज़ करना चाहते थे, और पर्पस था कि इसको अगवा करके लेके जाया जाए। मगर शहीद ने वहाँ पर रजिस्ट किया, उसके लड़कों ने रजिस्ट किया, जिस पर इन्होंने फायर करके उसको शहीद कर दिया मौके के ऊपर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस, बस स्टेशन और सर्विस रोड्स आवाम के लिए एक तोहफा हैं। मंसूबे ट्रैफिक दबाव कम करने, सफरी सहूलत में इजाफा और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकलाब लाएंगे। तफसील इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शहर में जारी मुख्तलिफ मनसूबों का दौरा किया और तामीराती काम का जायजा लिया। वज़ीर बल्दियात सिंध, मेयर कराची और दीगर हुकाम भी उनके हमरा थे। तर्जुमान के मुताबिक भैंस कॉलोनी रेलवे लाइन पर फ्लाई ओवर, बहरान हाईवे से नेशनल हाईवे N5 तक फ्लाई ओवर की मजमूई लंबाई 682 मीटर और चौड़ाई 20.65 मीटर है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि फ्लाई ओवर मनसूबे की मजमूई लागत 1 अरब 62 करोड़ रुपए से जायद है। मनसूबे पर माली पेशरफ्त 48% और काम की पेशरफ्त 58% मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मनसूबे की तकमील से मलीर और एतराफ के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव नुमाया तौर पर कम होगा। उन्होंने मलीर कैंट नुमाइश रेड लाइन का जायजा भी लिया। मनसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग में बताया गया कि BRT रेड लाइन कॉरिडोर मौसमियात से मलीर हॉल्ट तक की मजमूई लंबाई 9.65 किलोमीटर और फेज 2 12.85 किलोमीटर तवील है। फेज 1 में 3 अंडरपासेस तामीर किए जा रहे हैं। निकासियाब और लैंडस्केपिंग के इजाफी काम भी मनसूबे में शामिल है। फेज 1 की मजमूई लागत 13 अरब 79 करोड़ रुपए से जायद है। वज़ीर आला सिंध ने MA जिना रोड पर जारी ग्रीन लाइन के काम का भी जायजा लिया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कोई जरिया माश के लिए मुल्क से बाहर जाए तो बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई मायूस होकर मुल्क छोड़ जाए तो अफसोस की बात है। हाफिज नईमुर रहमान मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में कारकुनान के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चंद लोगों ने दौलत और ताकत की बिना पर पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा है, हमने इसी जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ना है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती निज़ाम कमज़ोर करके रख दिया गया। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद गरीब आदमी के लिए अदालतें मज़ीद कमज़ोर हो गई हैं। 21 दिसंबर को इस गले सड़े निज़ाम के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची में सिर्फ पीपल्स पार्टी काम कर रही है। जो लोग बड़े वादे करके आए थे उन्होंने आवाम की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा जमात इस्लामी के पास कई टाउन्स और वसाइल हैं मगर इनके पास काम करने का जज्बा नहीं। मेरे दाएं जानिब गालिबन ये फतह पार्क है, फतह पार्क है ये, जिसके ऊपर लोग काबिज हैं और वो लोग ये कह कर आए थे इलेक्शन के टाइम पर कि हम निजात दहिंदा बनेंगे आप लोगों के। निजात दहिंदा का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ की आवाम की ज़िंदगी या मयार ज़िंदगी में वो कोई बेहतरी नहीं लाए। जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे उनको नहीं मिले। यहाँ तक कि कराची शहर के ज़िले में सारे टाउन उनके हैं, सब कुछ उनके पास है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो काम करने की नीयत नहीं है। और ये है फ़र्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुनाफिकीन का। SSP स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने बताया है कि गुज़िश्ता रात पुलिस ने कराची के इलाके नाज़िमाबाद में छापा मारा और भत्ताखोरी में मुलविस 17 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। ज़ीशान शाह की रिपोर्ट देखिए। SSP SIU इमरान खान के मुताबिक गुज़िश्ता रात कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार होने वाले भत्ताखोरों का नेटवर्क वसीउल्लाह लाखो और अब्दुल समद काठियावाड़ी चला रहा था। पुलिस ने 2 रोज कबल रेहानुद्दीन को मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया था, जो जमशेद क्वार्टर्स में फायरिंग के वाक़े में मुलविस पाया गया था। शहर में भत्ते का बड़ा नेटवर्क चलाने में दीगर गिरोह और मुल्ज़मान के अलावा इंतहाई मतलूब मुल्ज़मान वसीउल्लाह लाखो और अब्दुल समद काठीवाड़ा मुलविस हैं, जो इतलात के मुताबिक बैरून मुल्क छुपे हुए हैं। इस गिरोह का कराची में नेटवर्क चलाने वाले 3 मरकज़ी मुल्ज़मान जवाद और वाजा कादरी, रेहानुद्दीन और मुल्ला शाहज़ेब का मरकज़ी किरदार है। गुज़िश्ता रोज SIU ने रिजविया से 17 अफराद को हिरासत में लिया, जिनमें से 8 मुल्ज़मान का साबिक़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया है, जबकि शोएब ताहिर समेत 3 सहूलतकार भी गिरफ्तार किए गए हैं। भत्ताखोरी में और गैर कानूनी असला के जुर्म में मुलव्वस 9 अफराद के खिलाफ SIU पर 10 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि दीगर अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और वेरिफिकेशन की जा रही है। ये जो कार्रवाई हुई है इसमें क्या सरबत एजाज कादरी का कोई किरदार था? उनका कोई किरदार ऐसा हमारे पास सामने नहीं आया। जो एक्चुअल इन्वॉल्व मुल्ज़मान थे जिनके खिलाफ हमारे पास एविडेंस था, जिनका प्रीवियस रिकॉर्ड भी है और जो भत्ताखोरी में पुलिस को वांटेड भी हैं, उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, उनको गिरफ्तार किया है। आदत व शुमार के मुताबिक साल भर में भत्ताखोरी के 169 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 65 वाक़यात भत्ताखोरी जबकि दीगर ज़ाती नौयत के थे। गुज़िश्ता माह जमशेद क्वार्टर्स में गाड़ियों के शोरूम पर फायरिंग के वाक़े में यही ग्रोह मुलविस था, जिसके बाद मज़ीद कार्रवाइयाँ की गईं। कैमरामैन ज़ीशान इकबाल के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। मौसमियाती तब्दीली जैसे आलमी मसले पर जहां बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में एक नौजवान ने इनफरादी सतह पर अनोखा और अमली कदम उठाकर सबकी तवज्जो हासिल कर ली है। इस पर देखते हैं करक से अबरार खटक की ये रिपोर्ट। करक के इलाके खुरम मोहम्मद जई के नौजवान हारिस इस्लाम ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी मदद आप के तहत एक डैम तामीर किया है। ज़ाती वसाइल से बनाया गया ये डैम बारिश के पानी को ज़हीरा करेगा, जिससे ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बेहतर होने के साथ साथ ज़राअत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। हारिस इस्लाम का कहना है कि इलाके में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे जा चुकी है और बारिश का पानी ज़ाया होने की बजाय महफूज होना चाहिए, ताकि आवाम को साफ पानी मुयसर हो और फसलों को सिराबी भी हासिल हो। इस डैम के काफ़ी फ़ायदे हैं। जितनी भी यहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो यहाँ से पानी भी इस्तेमाल कर सकती है अपनी घरेलू इस्तेमाल के लिए, बल्कि जानवर और मवेशी भी यहाँ से पानी पी सकते हैं। इलाकाई मकीनों का कहना है कि इस डैम से न सिर्फ पानी की किल्लत में कमी आएगी बल्कि मौसमियाती तब्दीली के असरात भी कम होंगे। जो नौजवान मुस्तकबिल के
اس کو ایک یہ مثال بھی ہے کہ اوپر لے اور وہ بھی آگے جا کے اس طرح کی مینی ڈیمز بنائیں، تالاب بنائیں، تاکہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں جو بھی ہو مسئلہ ہوا آہستہ آہستہ ہم انشاءاللہ اپنے طور پر اور اپنے طریقے سے اس کو حل کریں۔ یہ ڈیم ایک مثال ہے، اگر ارادہ مضبوط ہو تو ایک فرد بھی ماحول دوست اقدامات کے ذریعے کمیونٹی کی خدمت اور موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ کیمرہ مین شہریار خان کے ساتھ ابرار خٹک، جیو نیوز، کراک۔